Hello guys, I am Vikas Latif and today in this lecture I will tell you about different guidelines related to clinical and applied research. In this lecture we will discuss about the Equator Network, what is Equator Network and why was Equator established. So basically Equator Network help and supports the researcher and writers to publish high impact health research. The Equator Network was formally launched in 2008 at the Royal Society of Medicine in London, UK, and it is a part of Centre for Statistics in Medicine, University of Oxford, UK. Equator Network developed a comprehensive library that provides a collection of publications related to reporting guidelines on scientific writing, publication ethics, and education materials and tools for editors, peer reviewer, and researcher. So till now, there are 616 reporting guidelines are available at Equator Network websites, and these guidelines can be used in different study type. So now we will discuss different types of study design. So basically, the most important study design is the meta-analysis, and then systematic review, experimental studies, observation studies, diagnostic accuracy, and case report. And the last in the animal study, preclinical studies. In meta-analysis, basically a researcher combine the different studies and collect the data and conclude after analysis the combined data. In systematic review, a researcher basically combine the different studies and critical analyze and then make conclusion on the basis of own experience. In systematic review में basically statistical analysis involved नहीं होता, जबकि in meta analysis में different statistical tool apply करके single conclusion provide किया जाता है. That is the major difference between the systematic review and meta analysis. And in experiment study, researcher basically intervene or manipulate the independent variables and see the effect on the dependent variables. So in which डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं. एक तो जो मोस्ट कॉमन है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है एंड देन कॉज एक्सपेरिमेंटल. In observation studies, a researcher basically just observe the data and conclude on the basis of different statistical tool. ऑब्जर्वेशन स्टडी में बेसिकली केस कंट्रोल स्टडीज आपकी आती हैं, कोहार्ट है और क्रॉस सेक्शन स्टडीज आती हैं. एंड देन डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी डिज़ाइन, जिसमें रिसर्चर बेसिकली किसी भी न्यू डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग टूल्स को चेक करता है, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को अगेंस्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड्स. एंड फाइनली इज द केस रिपोर्ट, अनयूजुअल यूनिक फाइंडिंग अगर आपको मिलती हैं तो वो भी आपको रिपोर्ट पब्लिश करवा सकते हैं. इस तरह प्री क्लिनिक स्टडीज जो होती हैं आपकी एनिमल मॉडल्स जो बनते हैं वो सारी की सारी एनिमल स्टडीज कहलाएंगी. अब ये जितने डिफरेंट डिज़ाइन है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं क्लिनिकल एंड अप्लाइड रिसर्च में, इनके अगेंस्ट भी डिफरेंट गाइडलाइंस मौजूद हैं और जो इक्वेटर नेटवर्क अवेलेबल हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, इन दोनों के लिए एक सेम गाइडलाइंस हैं जो कि प्रिज्मा कहलाती हैं. एंड द प्रिज्मा इज द एब्रिविएशन ऑफ प्रेफर रिपोर्टिंग एटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस. द बेसिकली प्रिज्मा चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ 27 एटम्स. तो आप अगर में से कोई भी सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस को अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करवाना चाहता है देन दे मस्ट फॉलो द प्रिज्मा गाइडलाइन. इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रिसर्चर का कंट्रोल होता है, डेट इज़ द रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट डिज़ाइन है. एक तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं, फिर नो रैंडमाइज्ड ट्रायल्स हैं, कॉज एक्सपेरिमेंटल्स हैं. तो इफ द रिसर्चर इज डूइंग द randomized trials, they must follow the consort guidelines, and consort guidelines basically is the abbreviation of consolidated standards for reporting trials, and or it consists on 25 items. तो अगर आप इन एटम्स चेकलिस्ट को completely फॉलो कर लेते हैं then you can publish the randomized trial in high impact factor journals. देन देयर इज ऑब्जर्वेशन स्टडी, जिसमें हमने बात की थी केस कंट्रोल, कोहार्ट और क्रॉस सेक्शन स्टडी. ये सब की सब ऑब्जर्वेशन स्टडीज कहलाती हैं. तो इफ द रिसर्च इज इंटरेस्टिंग टू
find the relationship, association of different risk factor with the disease, तो वो ये observation studies करते हैं. So if the researchers are doing the observation study, they must follow the STOP guidelines, and STOP is the abbreviation of strengthening the reporting of observation studies in epidemiology, and it consists of 22 items. तो बेसिकली ये भी 22 की चेक लिस्ट है. तो जब भी आप ऑब्जर्वेशन स्टडी करें, देन यू मस्ट फॉलो दी स्टॉप गाइडलाइंस. इसी तरह नेक्स्ट जो स्टडीज हैं जिसमें हमने बात की थी कि रिसर्चर किसी भी न्यू डायग्नोस्टिक टूल को चेक करता है अगेंस्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि जी जो न्यू स्क्रीनिंग टूल है इट इज़ एज एक्यूरेट एज द गोल्ड स्टैंडर्ड. तो उसके लिए स्टार्ट गाइडलाइंस हैं. तो स्टार्ट बेसिकली इज एब्रीविएशन स्टैंडर्ड फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 30 आइटम्स. तो रिसर्चर मस्ट फॉलो द स्टार्ट गाइडलाइंस अगर वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी कर रहा है, जिसमें वो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू या नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में इंटरेस्टेड है. इसी तरह अगर कोई आपके पास यूनिक या अनयूजुअल केस या फाइंडिंग्स आती हैं तो उसको भी रिपोर्ट किया जा सकता है. और तो सिंगल केस के ऊपर भी पब्लिकेशंस होती है जो कि केस रिपोर्ट्स कहलाती हैं. अब उसकी भी गाइडलाइंस हैं और इट हैव 13 आइटम्स. एंड द लास्ट इज द एनिमल प्री क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें रिसर्चर डिफरेंट एनिमल मॉडल्स बना के डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट जो है जो आपकी ड्रग्स हैं या आपके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट ट्रीज के, प्लांट्स के, उसका इफेक्ट देखना होता है. तो वही एनिमल स्टडी कंडक्ट करते हैं. उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो अराइव गाइडलाइंस हैं. इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ एनिमल रिसर्च रिपोर्टिंग ऑफ इन विवो एक्सपेरिमेंट्स, and it has 10 items. So you must follow the arrive guidelines for animal studies. अब जब जितनी भी स्टडी डिज़ाइन आप करके डाटा कलेक्ट करते हैं, देन टू हैव टू रिपोर्ट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च. तो उसके लिए भी गाइडलाइंस मौजूद हैं. स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एनालिसिस के लिए सैम्पल गाइडलाइंस है. सैम्पल इज द एब्रीविएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मेथड इन द पब्लिश लिटरेचर. तो उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को, इंप्रेशन स्टैटिस्टिक्स को, हाइपोथेसिस को, फाइंडिंग्स को किस तरह प्रेजेंट करना है अपने आर्टिकल्स में, तो वो सारी की सारी डिटेल मौजूद है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल्स है अच्छे किसी जर्नल्स में और फ्री ऑफ एरर हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें. अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से जर्नल में पब्लिश होगी और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा. थैंक यू सो मच.